हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल AMIS स्टडी सर्किल। और होपफुली आप सभी लोगों की तैयारी ठीक चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न उत्तराखंड की हिस्ट्री को। ठीक, लेकिन इसको समझने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिफोर वी अंडरस्टैंड द मॉडर्न उत्तराखंड फ्रॉम 1815 ऑनवर्ड्स, वी मस्ट नो what is happening at the same time in the Indian history, right? Because the modern Indian history starts from the 1707 onwards up to 1947, but in case of Uttarakhand, the modern history starts from 1815. So we have a difference of more than 100 years in case of Uttarakhand, modern Uttarakhand, right? So the modern history is also equally important for this upcoming examination, and modern Uttarakhand is also equally important for this upcoming examination, right? So modern India of this period time can be divided into two parts. One is from 1707 up to 1857, and second from 1857 onwards up to 1947. So total we have 240 years of modern India. And in case of modern Uttarakhand, when the colonial power established in Uttarakhand, in the Kumaon region particularly, the modern history of Uttarakhand starts from here. हमारे लिए काम तब आसान होगा जब हमको ये भी पता हो साथ साथ कि उत्तराखंड में जिस समय जो घटनाएं घट रही हैं उसी दौरान इंडियन हिस्ट्री में क्या हो रहा है। सो दिस इज द अर्लियर पार्ट ऑफ द 19th century. British Empire was busy in expanding their empire by defeating various contenders. In 1817, Maratha power also came to an end after the Third Anglo-Maratha War. So that time, who was the Governor General? The answer is Lord Hastings was the Governor General of Bengal during the Anglo-Maratha War, Third Anglo-Maratha War. So when Kumaon part of Uttarakhand was put under British rule, E. Gardner became the first commissioner of Uttarakhand, and at the same time Lord Hastings was the Governor General. अगर हम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को साथ लेके चलें तो हमारी मॉडर्न उत्तराखंड की समझ थोड़ी और अच्छी डेवलप हो सकती है, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर अवेयर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट ऑफ दिस एरा, then we can say that the things will be a bit easier to understand the modern Uttarakhand history also. This background is very necessary before you go through the history of Uttarakhand. Okay, so today I picked modern Uttarakhand, and which can be understood in two contexts. How Uttarakhand under colonial power, that is from 1815 onwards up to 1947, and we have a reference of Tehri state, that is the example of a princely state in the Garhwal region, that is called a princely state. इसका टाइम पीरियड देखेंगे आप 1815 to 1949 onwards, 1949 not onwards, 1949, because Tehri state signed merged into the Indian Union in August 1949, right? So Tehri state isn't one of the example of a princely state. So we have more than 550 princely state all around India during the British period. Tehri state was one of them. So Tehri state also having its historical importance in the pages of Indian history, and the Tehri state, which was continued by the rulers, has an ancestry in the name of Parmar rulers, right? तो टेहरी रियासत में जो शासक शासन कर रहे थे, दरअसल इससे पहले गढ़वाल रीजन में जो परमार डायनेस्टी थी वो उसी के वंशज हैं, उसी को कंटिन्यूएशन हमको देखने को मिलता है. तो आपको प्रद्युम्न शाह के बारे में पता होगा. प्रद्युम्न शाह डाइड इन द बैटल ऑफ खुड़बुड़ा, दैट इज टुक प्लेस इन 1804. सो दिस टाइम एंटायर Kumaon region was under the Gorkhas, right? Gorkha also want to establish their real rule in Garhwal region also, right? So some of the living sons of Pradyumna Shah seek support from British. One of them was Sudarshan Shah. Sudarshan Shah ने ब्रिटिश से मदद मांगी to restoration of the empire, ताकि उनको empire वापस मिल सके. And these facts are very important. और आप जानते हैं कि कैसे ब्रिटिश ने गोरखाओं को हराया. एंड देयर इज अ ट्रीटी ऑफ सगौली विच साइंड इन बिहार, उसको भी हम अलग से समझेंगे. सो फॉलोड बाय द डिफीट ऑफ द गोरखास एंड ट्रीटी ऑफ सगौली, ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश्ड इन उत्तराखंड, राइट?
नो डाउट. सो एज पर द टर्म्स, जो अंग्रेजों और सुदर्शन शाह के बीच में स्थापित हुए होंगे टर्म्स एंड कंडीशंस, उसमें पता चलता है हमें कि सुदर्शन शाह वॉर इंडेमनिटी की जो रकम थी वो नहीं दे पाए. इसको ब्रिटिशर्स को, somehow unable to pay the war indemnity to the Britishers, as a result of which the Garhwal state was divided into two parts. गढ़वाल स्टेट को भी दो पार्ट में बांट दिया गया. ये बात हो रही है सुदर्शन शाह के समय की, who was actually the first princely state ruler of टेरी. लेकिन अभी राजा नहीं बने हैं वो, अभी तो संघर्ष जारी है. So east of the Alaknanda river now came to be known as what? The British Garhwal, and the region of the Dehradun and Chandi merged with the Saharanpur of UP, and Sudarshan Shah was enthroned in the remaining portion of Garhwal state, and this Garhwal region came to be known as what? Tehri state. So this must be happened before 1815, and in this way, after the defeat of the Gorkhas, British rule established directly over the Kumaon region, and the Garhwal came under these princely states, right? Sudarshan Shah start ruling from a newly constructed capital called Trihari, and from this Trihari, the name is derived called Tihri. तो किसने स्थापना करी थी त्रिहरी की? सुदर्शन शाह ने की थी. एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है. सुदर्शन शाह और उसके वंशज were accepted as the rulers of the Tehri state from 1820 onwards by a treaty. One more treaty took place between the Britishers and the Garhwal rulers, and in 1820 only they are officially accepted as the rulers of the Tehri state. This is very important again. सुदर्शन शाह ruled up to 1859. कब तक शासन किया इन्होंने? सुदर्शन शाह जी ने 1859 तक. और इसी दौरान हम देखते हैं कि जो रवाई रीजन है, इन द मीन वाइल वी हैव अ रेफरेंस ऑफ द रवाई रीजन इन 1824 वाज given to the Tehri state, and Sudarshan Shah also accepted the residing of a British resident in his state. This is something again very important. आपको पता ही है कि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार कितनी चालाकी से काम करती थी, और जितने भी प्रिंसली स्टेट होते थे, जो भी मित्र राष्ट्र होते थे, वहां पर अपने एक नुमाइंदे को रखती थी, एक रिप्रेजेंटेटिव को. was very busy in watching the activities of the princely rulers. उसे कहा जाता था क्या? ब्रिटिश रेजिडेंट. So we have a reference of British resident in each part of the princely state, and they are the representatives of the Britishers. यही तो खेल था सारा ब्रिटिश का, कि किस तरीके से उन्होंने अपने मित्र राष्ट्र भी बना के रखे थे. और देखेंगे कि कैसे इन्होंने मदद भी करी ब्रिटिश एम्पायर को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने में. एनीवेज, ब्रिटिशर वर ऑल्सो अलाउड टू कैरी ऑन ट्रेड इन द टेरी स्टेट, यानी कि उनको रास्ता मिल गया होगा ब्रिटिश एम्पायर को, ये जो लॉजिस्टिक्स थे उनको आने जाने का, तो ये एक सुविधा मिल गई. किसको? ब्रिटिशर्स को. सुदर्शन शाह के कुछ और भी इंपॉर्टेंट काम रहे होंगे. कंस्ट्रक्टेड अ रॉयल पैलेस बेटर नोन एज पुराना दरबार. अगर हम खुद टेरी स्टेट की बात करें सुदर्शन शाह के समय में, सो ही कंस्ट्रक्टेड व्हाट? अ रॉयल पैलेस बेटर नोन एज व्हाट? पुराना दरबार. सुदर्शन शाह वाज आल्सो अ रिनोन्ड स्कॉलर, और उनके एक टेक्स्ट का नाम मिलता है सभासार, विच इज डिवाइडेड इनटू 7 वॉल्यूम्स विच शोज हिज मेरिट. तो इनकी अधिकतर हमको ये पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ गढ़वाल या टेरी स्टेट वाज अ स्कॉलर ऑल्सो. दे पैटर्नाइज्ड सम स्कॉलर्स एंड दे हिमसेल्फ आर अ वेरी गुड स्कॉलर्स ऑफ हाई मेरिट. बट during the revolt of 1857 he provided all possible support to the Britishers as well by sending his troops. तो कह सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी निष्ठा, किस प्रकार से निष्ठावान बने रहे, किसके? ब्रिटिशर्स के. तो ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट वी डू नॉट विटनेस एनी काइंड ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन द कुमाऊं रीजन इन उत्तराखंड एंड इन गढ़वाल रीजन ऑल्सो. इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, खासतौर पर जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते भी होंगे. So due to his loyal service to the Britishers to suppress the revolt, he was awarded what? Bijnor region as well. लेकिन सुदर्शन शाह तो कुछ और भी चाहते थे जो इनके हाथ से पहले ही निकल चुका था. ओके. Sudarshan Shah died issueless in 1859. So when Sudarshan Shah died, there was no son to succeed him. So what will happen? There must be a struggle to grab the throne. So we have a reference of a name, Bhavani Shah, who ruled between 1859 to 1871. Who was Bhavani Shah? Sudarshan Shah died issueless, and struggle for the succession began in the house.
उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया होगा। टू ऑफ द क्लोज कंटेंडर वांट टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, जो दो प्रतिद्वंदी थे वो सत्ता को हथियाना चाहते थे। भवानी सिंह वॉज एंथ्रोन्ड विद द हेल्प ऑफ सम रॉयल पीपल बट चैलेंज बाय अनदर कंटेंडर कॉल्ड शेर सिंह। शेर सिंह से भी इसको क्या मिलती है, चुनौती मिलती है फॉर अ ब्रीफ टाइम। और हमें ये भी पता चलता है कि कुछ समय के लिए शेर सिंह ने भवानी शाह को गद्दी से उतार भी दिया था और शासन भी किया था। बट विद द ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द देन कुमाऊं कमिश्नर, उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, रैमजे, भवानी सिंह वॉज एंथ्रोन्ड अगेन एंड भवानी शाह वॉज पीस लविंग रूलर एंड रूल टिल 1871। भवानी के शाह के समय में ऐसी कोई और गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी हमको नहीं मिलती। ही वॉज अ पीस लविंग रूलर और शांतिपूर्वक इन्होंने शासन किया। और शेरशाह का क्या हुआ, शेरशाह को देश निकाला दे दिया गया। ही वॉज पुट इनटू बैनिशमेंट। सो वी हैव अ ब्रीफ पीरियड ऑफ भवानी सिंह, जिसमें कोई ऐसा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर वॉज प्रताप शाह। ठीक, ही वॉज द सन ऑफ भवानी शाह, ये भवानी शाह के पुत्र हैं। इन्होंने भी अपनी राजधानी को शिफ्ट किया। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू प्रताप नगर, अपने ही नाम पर एक नगर की स्थापना करी और ये परंपरा हम देखेंगे आगे भी जारी रहेगी। दिस ट्रेडिशन वॉज कंटिन्यूड इवन आफ्टर प्रताप शाह ऑल्सो। द न्यूली कंस्ट्रक्टेड कैपिटल, याद रखेंगे, प्रताप नगर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय प्रताप शाह। क्यों, ऐसा क्यों किया उन्होंने? अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, एज द ह्यूमिड कंडीशन ऑफ टेरी वॉज नॉट सूटेड हिम। टेरी में काफ़ी गर्मी पड़ती थी, काफ़ी उमस रहती थी, इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं प्रताप नगर की स्थापना करी, जहां पर मौसम काफ़ी अच्छा हुआ करता था। He undergone various matrimonial alliances with the contemporary royal houses of his times। जब हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमको याद आती है लिच्छवी रिपब्लिक की, जो बिहार में था। वहां किस प्रकार से चंद्रगुप्त फर्स्ट जैसे महान शासक ने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, विवाह किए। इससे क्या होता है, आपकी स्थिति और मजबूत ही होती है। तो दैट एग्जैक्टली डन बाय प्रताप शाह ऑल्सो। So those houses were Guler, Suket and Mandi, which must have been increased his prestige as well। तो इस प्रकार से प्रताप शाह की जो प्रतिष्ठा थी वो काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि इन्होंने क्या स्थापित किए, मैत्रीपूर्ण संबंध और मैट्रिमोनियल अलायंस, विवाह किए इतने सारे राजकीय घरानों से। He also encouraged what? English education in his kingdom। साथ ही साथ कुछ रिफॉर्म वर्क्स भी कर रहे हैं और इंग्लिश एजुकेशन को क्या किया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है प्रताप शाह के द्वारा। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट प्रताप शाह। प्रताप शाह सर्वाइव्ड बाय हिज 3 लिविंग सन्स। प्रताप शाह की जब मृत्यु होती है, उनके 3 जीवित पुत्रों का उल्लेख मिलता है। वी हैव कीर्ति शाह, विचित्र शाह एंड सुरेंद्र शाह। तो इनकी मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रताप शाह, कीर्ति शाह बिकेम द रूलर एंड ही रूल्ड कंसिडरेबली फॉर द लॉन्ग टाइम from 1886 onwards up to 1913। ठीक है, काफी लंबे समय तक शासन किया है। अब देखते हैं कि कीर्ति शाह के समय में क्या क्या चीजें होती हैं, और यहां पर थोड़े से ज्यादा हमको फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। राइट, कीर्ति शाह वॉज द माइनर व्हेन हिज फादर डाइड। जब कीर्ति शाह शासक बने थे तो हम कह सकते हैं कि वो अल्पवयस्क थे अपनी पिता की मृत्यु के समय। सो जैसा कि इतिहास में हमने देखा भी है, ऐसे में होता क्या है कि सत्ता की बागडोर या तो माता के हाथ में आ जाती है या किसी काउंसिल के ऊपर दे दी जाती है। एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड इन टेरी स्टेट ऑल्सो। द थ्रेड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिमेन इन द हैंड्स ऑफ हिज मदर एंड मेंटर क्वीन गुलेरिया। इनकी माता का नाम है गुलेरिया, इनके हाथों में थी क्या, सत्ता। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड अंडर द क्वीन। एक प्रशासनिक परिषद बनाई गई होगी। कीर्ति शाह अटेन एडल्टहुड इन 1892। इसीलिए यहाँ पर मैंने 1886 तो लिखा ही है, लेकिन यहाँ पर मुझे 1892 लिखना चाहिए कायदे से। एंड एज्यूम द पावर ऑफ टेरी स्टेट, और इस प्रकार से सत्ता उन्होंने अपने हाथों में ले ली। कीर्ति शाह वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट लर्न्ड मोनार्क ऑफ हिज टाइम। काफी विद्वान थे और इनकी विद्वता से ब्रिटिश भी काफी प्रभावित थे। इवन ब्रिटिशर्स और वर ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय हिज scholar merits, right? Britishers bestowed him the title of Companion of India and Knight Commander। Please note down, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following Tehri state ruler was awarded with the title of Companion of India and Knight Commander? None other than कीर्ति शाह। इसको नोट करेंगे।
Being the learned and educated ruler, he continued to patronize education on the lines of his father. अपने पिता की ही भांति ये भी क्या करते थे, शिक्षा और संस्कृति को प्रोत्साहन देते थे. He established various schools and learning centers. स्पेलिंग गलत है, प्लीज माइंड मत कीजिएगा इस बात को. Various schools and learning centers in his kingdom and contributed rupees 1,300 for the construction of the hostel in the Srinagar as well. Very important again. तो इन्होंने एक छात्रावास बनाने के लिए भी 1,300 रुपए की रकम प्रदान करी थी. वेरी इंपॉर्टेंट. He tried to bring various kind of reforms in almost all the sector of his kingdom. ठीक है, लोगों को काफी प्रोत्साहित भी करते थे और लगभग सभी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है इन्होंने सुधार कार्यक्रम जारी रखे. He established urban council as well. एक प्रकार से आप नगर परिषद कह सकते हैं. And made useful amendments in the existing forestry law. और कुछ सुधार किए किसमें, जो मौजूदा वानिकी नियम थे उसमें. तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट कीर्ति साह. यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं. कीर्ति साह वॉज वेल वर्स्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज. इनको कई सारी भाषाओं में महारत हासिल थी. हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फ्रेंच एंड इंग्लिश एज वेल. which reflects what? That he was a scholar of high merit. He also took keen interest in the astronomy and even constructed an observatory in Tehri. इन्होंने एक वेधशाला भी बनवाई. वेधशाला बनवाना कोई नई बात नहीं थी. और भी हम देखते हैं कि कई सारे राजाओं का नाम हमको मिलता है जिन्होंने वेधशालाएं बनवाई थी, है ना. सवाई जयसिंह का नाम आप जानते ही होंगे. दिस ऑब्जर्वेटरी वॉज डिप्लॉयड विथ मॉडर्न टेलीस्कोप. आधुनिक स्तर के जो उस समय के टेलीस्कोप रहे होंगे, दूरबीनें रही होंगी, वो इन्होंने इसमें स्थापित करवाई थी. and some other optical instruments. All of these instruments are important from the western countries. तो समझ सकते हैं कि how he was interested in all these activities also, right? And it is believed that he was the inventor of the typewriter. माना जाता है कि इन्होंने टाइपराइटर का आविष्कार भी किया था, लेकिन इन्होंने अपने नाम से पेटेंट नहीं कराया और ये कंपनी को दे दिया गया था कोई पेटेंट. शायद इसलिए इस तरीके से इतिहास के पन्नों में ये नाम खोस आ जाता है. Although he was scientific in temper, but also inclined towards religious activities. इन सब गतिविधियों से पता चलता है कि इनकी जो अप्रोच थी वो कैसी वैज्ञानिक अप्रोच रही होगी. On the lines of Akbar's religious policy, he convened the conference of different scholars. अकबर की रिलीजियस पॉलिसी आप जानते ही होंगे कि कैसे 1875 में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया. And he welcomed various scholars of different religion, है ना. लेकिन इस तरीके से कन्वेंशन तो इसने नहीं करवाए, इबादत खाने का निर्माण तो नहीं करवाया, लेकिन कई स्कॉलर्स को इसने अपने पास बुलाया था, जिससे पता चलता है कि ही वॉज ऑल्सो वी कैन से इंटरेस्टेड इन अदर रिलीजन्स ट्रूथ ऑल्सो. कीर्ति साह एस्टैब्लिश कीर्ति नगर आफ्टर हिज नेम. जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि ये परंपरा आगे तक जारी रही. ऑन द बैंक ऑफ अलकनंदा आफ्टर हिज नेम. कीर्ति नगर की स्थापना किसने करी? कीर्ति साह ने. कीर्ति साह वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ स्वामी राम तीर्थ. स्वामी राम तीर्थ की विचारधारा से काफी प्रभावित थे कीर्ति साह और उनको पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा. कहाँ? रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, जो कि जापान में होनी थी. तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कीर्ति साह एंड प्रताप शाह, भवानी सिंह एंड सुदर्शन शाह. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू डील विद द नरेंद्र शाह. अगले लेक्चर में टेरी स्टेट वाला जो रूलर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके होंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग टू द टेरी स्टेट. ओके, तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ाई भी करते रहिए अपने स्तर से. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही. थैंक यू.